fiery sentiment of those nationalist Rama devotees. The strength of faith soon turned into the power of might, and on 6 December 1992, on the day of Gita Jayanti, thousands of devotees coming from all corners of India made the soil of Ayodhya sanctimonious. Though their intention was to peacefully let the whole world know that the time had come to give due reverence to our national pride. The reason for this too was quite clear. For them, this building was not a mosque. In it they still found the gloom of slavery. To them it was almost as if Mir Baqi made it a point to make them remember that disgrace for all times to come. यदि हमने अयोध्या में, वाराणसी में या मथुरा में अपने मंदिरों को वापस लेने के लिए किया है, तो निश्चित रूप से वो स्वाभिमान सम्मान को फिर से प्रतिष्ठित करने की भावना उसके. This gets even more evident as those followers of Lord Rama didn't even touch a brick of any of those mosques which came on their way to the Babri Masjid. In Ayodhya too, there were dozens of mosques which not only went unharmed, but not a single follower even looked down upon them with a scoff. Their purpose was never to attack any religion or faith. They didn't have hatred in their hearts for the Muslims or for Islam. This was the very reason that allowed Muslim ladies to go out for their daily shopping just hours after the Ram Janmabhoomi Mukti Andolan took place on 6 December 1992. It was this devotion of the devotees of Rama that finally made it possible to bring to dust the symbol of assault on our national pride. From under the layers of dust emerged such explicit evidences that it was beyond doubt that beneath the Babri structure there was indeed a glorious temple of Rama. The mention of this temple and Sri Rama Janmabhoomi are found even in the writings of Muslim historians. Abul Fazl and the granddaughter of Aurangzeb, Mirza Jan, a contemporary of Wajid Ali, novelist Mirza Rajab Ali Beg, and others wrote in clear terms that in Ayodhya, a mosque was built on Sri Ram Janmabhoomi by demolishing the temple existing there. But many found it difficult to digest this simple truth. To resolve this dispute, a lengthy battle was going on in the courtroom. Gopal Singh Visharad filed the first petition in 1950, claiming the right to perform religious services on Sri Ram Janmabhoomi. In the same year, Sadhu Paramhans Ramchandra Das of Ramananda Sampradaya filed another petition on the same issue. Nirmohi Akhada, requesting the right to perform religious duties and serve food to the deities inside the structure, filed the third petition, whereas Sunni Waqf Board filed the fourth petition in 1961. ये सभी मुकदमे आपस में हिंदू और मुसलमान पक्षकारों और राज्य सरकार आदि के बीच में चलता रहा। उसके बाद एक आवश्यकता महसूस की गई कि चूंकि भगवान राम वहां स्थापित हैं, रामलला विराजमान है और वो स्थान को राम जन्मभूमि के रूप में देवत्व शक्ति प्राप्त है, जब तक उनकी ओर से कोई वाद न प्रस्तुत किया जाए तब तक इसमें वास्तविक निर्णय संभव नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान देते हुए 1989 में भगवान रामलला विराजमान, स्थान राम जन्मभूमि और स्थान राम जन्मभूमि की ओर से उनके वाद मित्र देवकी नंदन अग्रवाल जी, जो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उनकी ओर से वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये विवादित स्थल भगवान राम की जन्मभूमि है और जिस पर विक्रमादित्य के समय से ही एक विशाल मंदिर था और 1528 में उस जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर बाबर ने ये विवादित ढांचा बनाया था और ये कहा गया कि इसको अनादिकाल से हिंदू लोग भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में पूजा करते रहे हैं और ये भगवान राम के जन्मभूमि के रूप में
स्थापित है। And subsequent to this started the examination of the witnesses. As the evidences started coming up, the claims of Sunni Waqf Board started falling apart and getting rejected one after the other. देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से कुछ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए, उसमें 2 डॉक्यूमेंट तो ऐसे विचित्र हैं। एक डॉक्यूमेंट उन्होंने सेटलमेंट मैप दाखिल किया है, जो फैजाबाद के गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि ये डॉक्यूमेंट कभी हमारे यहाँ तैयार ही नहीं हुआ। उस मैप के बारे में कहा गया है। और दूसरा, उन्होंने सेटलमेंट एंट्रीज दाखिल किया है जिसमें मस्जिद जन्मस्थान का उल्लेख है। प्रोफेसर B.R. ग्रोवर साहब की रिपोर्ट है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन जरूर किए गए थे। उसमें वर्ड बढ़ाया गया था, जैसे आबादी जन्म स्थान या जुम्मा मस्जिद, ये पहले नहीं था। और जैसा कि इन्होंने ग्रोवर साहब ने अपनी रिपोर्ट भी दिया है, इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कुछ मैनिपुलेशन करके कि यहाँ पर जन्मभूमि के साथ साथ मंदिर या मस्जिद भी थी। इस संबंध में जो इंक्वायरी हुई और लीगल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ली गई, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ली गई, और उसके आधार पर गवर्नमेंट ने 1992 में एक ओपिनियन गवर्नमेंट को भेज दिया कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट है और इसके आधार पर कोई चीज निर्णय नहीं लिया जा सकता। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद जन्मस्थान कोई शब्द नहीं है। जामा मस्जिद हो सकती है, जन्मस्थान मंदिर हो सकता है, लेकिन मस्जिद जन्मस्थान नाम की कोई एंट्री संभव ही नहीं है, और उसको कोर्ट ने इग्नोर करते हुए उसके आधार पर उनकी कोई टाइटल नहीं मानी। Based on those documents, when the Sunni Waqf Board was made to bite the dust, they tried to distract the court with a new issue, but this time too they had to accept defeat. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाद में एक तीसरा स्टैंड भी लिया, और तीसरा स्टैंड लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपनी मिल्कियत न भी साबित कर पाएं तो विवादित भूमि पर लगभग 450 साल से मेरा कब्जा है, इस आधार पर हम प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इसके मालिक हो चुके हैं। लेकिन जहां तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, प्रतिकूल कब्जे के लिए आवश्यक है कि आपका कब्जा किसके प्रतिकूल है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसमें आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन इसका मालिक था और उस मालिक के खिलाफ आपने कब से कब्जा कर रखा है। Sunni Waqf Board's challenge was proved wrong by the details of the foreign experts, as well as the documents found from the British tenure, which clearly referred to this place as Ram Janmabhoomi. एक बार मैं इंग्लैंड गया था, तो वहां पर ग्रेट ब्रिटेन का जो 15वां प्रकाशन था, 1760 वर्ष की थी वो, उसके पृष्ठ 751 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि वहां पर सर्वाइविंग मॉन्यूमेंट्स में राम जन्मभूमि पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। उसके बाद सब्सिक्वेंट 1740 में एक फादर जोसेफ ट्रेफेन थिलर, जो यहाँ इंडिया में लगभग 40 साल उन्होंने बिताया, उनके अकाउंट्स हैं, जिन्होंने 1740 के बाद जिस समय भी वो अयोध्या में रहे, उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि जो विवादित स्थल है उसको हिंदू समाज भगवान श्री राम की जन्मभूमि मान रहा है, और उन्होंने उस वेदी का भी उल्लेख किया है जिस पर चरण चिन्ह और सीता रसोई बना हुआ है, और उन्होंने कहा कि वो भगवान की राम जन्मभूमि के रूप में पूजित है और इसमें सभी लोग आते हैं और इसकी उसी रूप में पूजा कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए कि वहां पर मस्जिद का रूप था ही नहीं, 3 गुंबद थे, उसमें कोई मीनारें नहीं थी, और जैसा कि मस्जिद में होता है वुजू करने की कुआं या पानी की व्यवस्था रहती है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। It was not only documents that were scrutinized in the court, but archaeological evidences were placed before the court as well, which were found by excavations conducted at the Ram Janmabhoomi. These excavations were carried out at the behest of the Honorable Court. The court sought to find out answers to 3 primary questions. First of all, whether there was indeed a temple at that place earlier. Second, whether that temple indeed was destroyed by Mir Baqi. And third, and the most important question, whether that place was indeed the birthplace of Lord Rama. All these questions were answered through excavations.
In this course of action, it was made sure that the excavation process remained completely trustworthy. प्रारंभ से ही एक मुसलमान और 2 हिंदू जजों 3 जजेस की पूर्णपीठ, विशेष पूर्णपीठ बनी हुई है। तो उसमें यह भी रखा गया कि जो पुरातत्ववेत्ता है उसमें भी यह अनुपात रहेगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों का अनुपात बना रहा है। यहां तक कि मुस्लिम पक्ष की ओर से, जो कि अप्रत्याशित थी, एक स्टेज पे एक दरखास्त आई कि साहब मुसलमान मजदूर कम मिल रहे हैं। तो न्यायालय ने फिर आदेश किया कि भाई मुसलमान मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए और मुसलमान और हिंदुओं दोनों का इस हिसाब से अनुपात रखा जाए कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखे। From the excavations to the investigations, a significant contributor to